اپنی زندگی میں امید کبھی نہ چھوڑیے گا. ہوپ, the most robust strength which a person can possess is that he is hopeful. پیچھے فرعون کا لشکر تھا, وقت کے فرعون کا, اور جس وقت وہ لشکر چلا, فرعون نے اپنی سلطنت میں سارے عہدیداران کو, سارے جو بھی لوگ تھے ان کو بائی آرڈر بلایا تھا. 1,00,000 صرف سیاہ رنگ کے گھوڑے تھے, 1,00,000 بلیک ہارسز, اور دیگر جو لوگ تھے, جو سواریاں تھیں, ان کا کوئی حساب نہیں. اور آگے دریا تھا, پیچھے فرعون تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے بتائے ہوئے رستے پہ لے کے جا رہا ہوں. اب آپ مجھے بتائیے, پیچھے دشمن ہے جو جان کا پیاسا ہے, آگے دریا ہے. What should be the course of action? This is important to contemplate and to galvanize that there was hope. امید تھی, اور وہ امید کس طرح سے بر آئی, کس طرح سے ریئلائز ہوئی پریکٹیکل ٹرمز میں, کہ وہ دریا پھٹ گیا. 12 قبیلے تھے, 12 رستے بن گئے. اور جب دریا پھٹا ہوگا, آبویسلی جو نیچے خشکی آئی ہوگی اس پہ دریا کا اثر تو ہوگا نا, تو ہوا ایسی چلا دی گئی کہ وہ جو باقی ماندہ کچھ پانی قطرے ہیں وہ بھی اڑ جائیں. اور جب وہ ایسے کر کے دریا پھٹا تو جو والز بن گئی تھیں پانی کی, ان کے درمیان میں بھی ایسے سوراخ آ گئے کہ ایک قبیلہ دوسرے کو بھی دیکھ سکے کہ میرے ریلیٹیوز اس میں ہیں یا اس قبیلے کا کیا بنا. There was a hope. ہمیشہ ہوپ کو ضائع نہ کیجیے گا. اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ لاٹھی ہے, اور جب آپ دربار میں گئے فرعون کے, اس وقت سامنے ایک سانپ آ گیا, اور لاٹھی is the only weapon available. Now you will use stick to capture the snake. ایک ہی آپ کے پاس لاٹھی ہے, اور وہ واحد اوزار ہے, واحد ویپن ہے, ہتھیار ہے جس سے سانپ کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اور حکم ہو رہا ہے کہ لاٹھی پھینک دو. سامنے فرعون ہے, اس کے درباری ہیں, سجے سجائے بیٹھے ہیں, اور بالکل تیار ہیں کہ نگیٹ کریں, لیکن حکم کیا ہو رہا ہے کہ لاٹھی پھینک دو. اور جب آپ نے حکم مانا, لاٹھی پھینکی, وہ لاٹھی بہت بڑا سانپ بن گئی, اور اس نے وہ سامنے والے سانپوں کو کھا لیا. اور جب آپ گئے اس وادی میں, وہاں پر پانی چاہیے تھا, پتھر پڑے تھے. فرمایا وہی لاٹھی جو پھینکی تھی سانپ بن گئی تھی, یہ لاٹھی پتھروں پہ مارو. پکڑے لاٹھی آپ, اور یہ فیصلہ آباد سے شروع ہو جائے لاہور تک, جتنے بھی پتھر آتے اس پہ لاٹھیاں مارے, کوئی فرق پڑے گا نہیں. لیکن جب آپ نے لاٹھی ماری پتھر پہ, پتھر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. اور یہی لاٹھی جب دریائے نیل پر ماری, پانی پھٹ گیا. ایک جگہ پانی نکل رہا ہے, ایک جگہ پانی پھٹ رہا ہے, ایک جگہ لاٹھی سے سانپ بن رہا ہے. اس کا مطلب all these are divine plans. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. Never lose hope. حضرت یونس علیہ السلام ویل مچھلی کے پیٹ میں تھے, وہاں پر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا بھی تھا, رات کا اندھیرا بھی تھا, پانی کا اندھیرا بھی تھا, لیکن there was a hope. اس جگہ پر بھی ایک امید تھی. اور امید کیا تھی کہ میرا رب مجھے بچا لے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. Never lose hope. یاد رکھیے گا, آپ خوش ہیں, مطلب خوشی کا دار و مدار اس بات پر نہیں ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے. خوشی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس بارے میں آپ کا خیال کیا ہے, آپ کیسے پرسیو کرتے ہیں اس کو. Always you are in a competition with someone else. اگر ایسا ہے کہ آپ ہر وقت کمپٹیشن میں رہتے ہیں, دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں, تو آپ بڑے پریشان ہیں. Remember, winners they focus on winning, losers they focus on winners. جو بندہ جیت جاتا ہے اس کی نظر منزل پر ہوتی ہے, اور وہ جو ہار رہا ہوتا ہے وہ منزل کو نہیں دیکھ رہا, وہ اپنے ساتھ والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اور وہ ہار جاتا ہے.
There is a difference between competition and collaboration. Never do competition always. You will be the most unhappy person in this world. अगर आप सबसे ज्यादा नाखुश रहना चाहते हैं, हमेशा कंपटीशन में आ जाएं, आप सबसे ज्यादा नाखुश हो जाएंगे. हर बंदा अपनी बाउंड्री में प्ले कर रहा है. अमेरिकन प्रेसिडेंट, 44th अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन था? बराक ओबामा. वो 47 साल की उम्र में अमेरिका का सदर बना और 57 साल की उम्र में 10 साल वर्ल्ड सुपर पावर का सदर रहने के बाद रिटायर हो गया. यानी 57 साल की उम्र में उसका कैरियर फिनिश हो रहा है. और उसके बाद जो 45th प्रेसिडेंट आया वो कौन था? डोनाल्ड ट्रंप. 70 साल का था. एक का कैरियर 57 साल में खत्म हो रहा है, एक का 70 साल में शुरू हो रहा है. वी ऑल आर ऑपरेटिंग इन डिफरेंट स्फीयर्स. और वो दोबारा से सदर बन गया, अब वो 82 ईयर्स का है. नेवर डू कंपटीशन ऑलवेज. जब आप अपने जहन से निकाल देते हैं ना कि मेरा कोई किसी से कंपटीशन नहीं है, यकीन कीजिए उस वक्त सबसे पहली चीज आपको पता चलती है कि अल्लाह ने मुझे कितने गिफ्ट्स दिए हैं, मेरे अंदर कितनी सलाहियतें, कितने प्लस हैं और मैं कितनी मुतमईन जिंदगी बसर कर रहा हूं. वो रब जिसने 87 लाख किस्म के जानवर बनाए, वो रब जिसने 4 लाख से ज्यादा इकसाम के पौधों की स्पीशीज बनाई, वो मेरा खालिक है. और जब हर चीज यूनिक और मुनफरिद है ना, तो मैं भी बिल्कुल यूनिक और मुनफरिद हूं. सबका अपना रिदम है इस दुनिया में, सब अलग अलग है. उरूज जवाल आपका अलग है, इसका अलग है, उसका अलग है. डोंट ऑलवेज कंपेयर. अगर इस दुनिया में किसी से कंपटीशन करना है ना, तो वो आपका माजी था जिससे आपने कंपटीशन करना है कि मैं आज से 1 साल पहले क्या था और आज क्या हूं. दिस इज द ओनली कंपटीशन विच यू शुड फेस. आप कारोबार के लिए मार्केट में गए और वहां जाके मुंह सुजा के बैठे हुए हैं, जी फला बहुत आगे निकल गया. उसकी जिंदगी का 25वां चैप्टर चल रहा है, आपकी जिंदगी का पहला चैप्टर शुरू हुआ अभी, और आप क्या मुकाबला कर रहे हैं? रेफरेंस के तौर पे मुकाबला लिया जाता है कि यार ये बंदा इतनी आगे निकल गया है, क्या क्या इसकी स्ट्रैटेजीज थी, किस तरीके से आगे गया. यू टेक रेफरेंस एंड देन यू प्रोसीड. यू नेवर डू जेलेसी. जेलेसी नहीं करते, इससे बड़ा नुकसान हो जाता है. याद रखना मेरी बात, ले लो जुमले. ये जो हमारा सेशन है ना, दिस मैं आपको भी टीचिंग करने नहीं आया, मैं डिस्कस करने आया. दिस इज नॉट ए टीचिंग सेशन, दिस इज ए कंसल्टेटिव सेशन. बातचीत होगी आपके साथ, तो जो मेरी तरफ से आ रहा है उसको आने दें. दरवाजे खुले रखें, दीवारें ना खड़ी करें. जो आ रहा है आने दें. कभी कुछ लोग ना हर बात में लॉजिक ढूंढते हैं. लॉजिक ढूंढेंगे, बात की क्रिस्पी खत्म हो जाएगी, बात की लज्जत नहीं रहेगी. और कुछ कहते हैं रिपीट करता जा रहा है, कोई बातें ऐसी हैं पहले भी सुनी है. तो रिपीट इज नॉट बैड. हु सेड रिपीट इज बैड? द एंटायर एजुकेशन सिस्टम इन दिस वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन रिपीट. When you learn something, it is not easy, it is difficult. Something is getting inside your mind with force. पढ़ना आसान है, याद करना बहुत मुश्किल है. ऐसे लगता है दिमाग के अंदर कुछ चीज घुस रही है और आसानी से नहीं घुसती. रिपीट करना पड़ता. आपके परदादा ने दादे को रिपीट किया था, दादे ने अब्बू को रिपीट किया था, अब्बू अब आपको रिपीट कर रहे हैं, आप अगली नस्ल को रिपीट करेंगे. वी ऑल आर रिपीटिंग. रिपीट इज व्हाट दिस वर्ल्ड इज ऑल अबाउट. मेरी आज ख्वाहिश ये है कि मैं कुछ आपकी छुपी हुई सलाहियतों को जिसमें जंग लग चुका उनको जरा पॉलिश करके चमकाऊं. उसके लिए मैं अल्फाज की पॉलिश इस्तेमाल करूंगा. यू मस्ट अलाउ द थिंग्स टू कम स्ट्रेट. आने दो बातों को जो आ रही है, आने दो, सीखो. बी ए लर्निंग मशीन. मत समझो कि सिर्फ वही मौत होती है जिसके अंदर चारपाई पे बंदे को लिटा के ले जाया जा रहा होता है. ये तो हतमी है. इससे पहले भी बंदे मरते देखे मैंने. वो जिसने सीखना छोड़ दिया मर गया. वो जिसने बड़े ख्वाब देखने छोड़ दिए मर गया. वो जिसकी बातों के अंदर अब इनोवेशन नहीं है, क्रिएशन नहीं है, मर गया. बहुत से लोग देखे मैंने, मर वो 40 साल में गए थे, दफनाया उनको 65 साल में गया है. सोचो इसको, जुगाली करो इस बात की जो मैंने कहा है. जुगाली करो, रिमिनेट. लेकर आओ अपने दिमाग को इस कंडीशन में कि तुम हर बात को कैसे ग्रैस्प करते हो, उसको संभालते हो. तो दिस इज अ कंसल्टेटिव सेशन. आई विल डू द क्वेश्चन, आई विल टेक योर क्वेश्चन एंड विल प्रोसीड. बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ टाइम बहुत ज्यादा कीमती होते हैं. हर वक्त एक जैसा नहीं होता, याद रखना.
इम्तिहान का जो 3 घंटा है, इम्तिहान का 3 घंटा, वो 3 घंटा रोज गुजरने वाले 3 घंटों से कितना कीमती है कि नहीं? है ना? उस 3 घंटे में वालिद साहब की भी डेथ हो जाए, वो नहीं मानेंगे। सप्ली, शदीद बुखार चढ़ा हुआ है ना, ये 3 घंटे इधर आके पेपर दो। टाइम मैनेजमेंट का असूल है, हर घंटा एक जैसा नहीं होता। आप नोट तो करें, पेपर से पहले सारा साल जो रट्टा लगाया था वो एकदम पेपर से पहले चंद घंटों में रिवाइज हो जाता है। ये रूल है। अगर आप अपने आप को कहेंगे ना कि ये कमरा साफ मैंने 3 महीने में करना है, ये 3 महीने में ही साफ होगा। और अगर आप कहेंगे 3 घंटे में साफ करना है, तो 3 घंटे में ही साफ होगा। टाइमलाइन सख्त दिया करे अपने आप को गोल के लिए। और अगर आपने कहा 3 घंटे में कमरा साफ करना है, बिल फर्ज ये कमरा 2.5 घंटे में साफ हो जाता है, तो बताओ बाकी आधा घंटा आप क्या करेंगे? अब मैंने आधा घंटा पहले साफ कर लिया, मौजे करता हूं। वो आधा घंटा आपकी जिंदगी का आधा घंटा है। वो चीजें तो 2 ही हैं, सांसें और वक्त, बाकी सब ड्रामा है। पैसा नहीं, ये छपरा स्टेट बैंक में बहुत छपरा है। चीजें 2 ही हैं, वक्त और पैसा। आज मेरे दोस्त को फंसा लिया, कढ़ाई वो खिलाएगा, जा रहे हैं आज ना, दोस्त को पूरी तरह फंसा लिया, कढ़ाई वो खिलाएगा, मैं खूब तरह खाऊंगा। और नादान, तू पैसे की बात कर रहा है, कढ़ाई की बात कर रहा है, तेरे 2 घंटे बर्बाद होने वाले हैं जो उन पैसों से कितना ज्यादा जरूरी थे। You don't take into account the value of time. So these 1 hour 20 minutes which I have decided could be the most important 1 hour and 20 minutes in your life. When I went to Peshawar, a person approached me. He was in the youth talks. I have delivered youth talks across Pakistan and we are proceeding. Daily we are in some other city for youth talks. Yesterday I was in Gujranwala and today I am in Faisalabad. Then I will go to Narwal, then Lahore, then Wakand, then Islamabad, then Gujarat. And when I was in Peshawar, that person, he was with me on social media and he said that I was having a fight with my brother on some property dispute. And being a Pathan, this was his word, not mine. He said that being a Pathan, my mind is not working well when I am in fighting mode. कि जब मैं पठान हूँ और जब हमारा फाइटिंग का होता है तो फिर हमारा दिमाग पूरी तरह चल नहीं रहा होता। तो मैं जा रहा था उसके पास, जमीन की एक टुकड़ा था उसके लिए लड़ने के लिए, एंड आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड। कहता है फिर आपका क्लिप मुझे पास कहीं से आया फेसबुक के ऊपर, और वो क्लिप कुछ इस तरह से था कि जब भी कोई बात ऐसी हो तो पीछे हट जाओ। मैंने उसमें साबित किया था कि अगर माचिस की तीलियां इकट्ठी पड़ी हुई हैं, आप एक तीली को आग लगाओगे तो वो जलती जाएगी जलती जाएगी, बीच की एक तीली को नीचे कर लो तो वो आग आगे बढ़ने से रुक जाएगी। तो कहता मैंने यही सोचा कि अगर मैं पीछे हो जाता हूं तो नस्लों की लड़ाई शायद रुक जाए। तो कहता मुझे बड़ा अच्छा लगा, एंड आई स्टार्टेड फॉलोइंग यू एंड नाउ आई एम हियर, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हैज बीन सॉल्व्ड। तो कभी कभार आपकी जिंदगी में कोई चीज हिट करने वाली होती है, मुझे अपनी समातें उधार दे दें, अपने सुनने की सलाहियत उधार दे दें, मैं जाते हुए आपको वापस कर दूंगा, आई प्रॉमिस। बट ट्राई टू चेंज योरसेल्फ इन दिस 1 hour। तैयारी करके आया हूं मैं आपको चेंज करने के लिए, वैसे नहीं खड़ा हुआ आके। आई हैव प्रिपेयर्ड वेल, क्योंकि मेरा ये मोटो है, मेरी जिंदगी का ये मकसद है, और मुझे इस बात का पता है कि वेल रिहर्स प्रेजेंटेशन इज द बेस्ट प्रेजेंटेशन। आप जब भी किसी के सामने बोलने जा रहे हैं, वो तन्हा आदमी है या हजूम है, वो ब्यूरोक्रेट है या वो ईंटें उठाने वाला मजदूर है, तैयारी करके जाएं। आप कोई आम लोग नहीं बैठे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आपके सामने पोस्ट डॉक साउथ कोरिया का, पोस्ट डॉक यूनिवर्सिटी ऑफ मैसेच्यूसेट का भी आता होगा, तैयारी करके आता है, आपको पता चल जाएगा फौरन ये बंदा किस चैनल से आ रहा है। लेट्स स्टार्ट और यूथ टॉक्स फॉर्मली। मुझे क्वेश्चन मिलेगा, पहला सवाल आपकी तरफ से कौन करेगा? जी गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन भी और आंसर भी। मैं आप सभी क्वेश्चन करूंगा, आपके लिए तोहफे भी लेकर आए। Hello, sir. I'm a civil engineering student from NFC. Sir, my question is that as we know, communication skill is most powerful weapon nowadays. Sir, how Islam provides us guideline regarding the communication skills?
वेरी गुड क्वेश्चन। भाई ने कहा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स इस वक्त दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है। इस्लाम कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे सिखाता है? इलॉन मस्क के मुताबिक इस वक्त सीवी के ऊपर सबसे टॉप की जो चीज अट्रैक्टिव है स्टूडेंट के लिए वो कम्युनिकेशन स्किल्स है। हाउ यू कैन डिलीवर समथिंग बाय योर माउथ। याद रखना इस्लाम की गाइडेंस है पूरी के कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होनी चाहिए। मेरा इस पे पूरा पॉडकास्ट भी है, मैं आपको समराइज करता हूं। नंबर 1, योर टोन। आपकी टोन। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा बनाया है कि जब ये गुफ्तगू करता है चाहे जितनी मर्जी ऊंची ले जाए चाहे जितना मर्जी आहिस्ता हो जाए, आपका टेक्ट ये है कि कहां कितना ऊंची रहना है ये सीखें। कुरान मजीद में आया सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज है, अपनी आवाजें कुछ पस्त करो। और मेरे पास ये पड़ी हुई है रिसर्च, ये रिसर्च है जनाब एल्बर्ट की, नाम है इसका एल्बर्ट और रूल है 73855 73855 73855। यानी 100% में सिर्फ 7% मेरे अल्फाज का आप पे असर होगा। ओनली 7%, जो बोल रहा हूं ना 7%। 38 टोन है, जितनी मैं आवाज को ऊपर नीचे कर रहा हूं, दाएं बाएं कर रहा हूं, आहिस्ता तेज बोल रहा हूं। और 50 और ये जो था 38% और 55% मेरी बॉडी लैंग्वेज है। मेरी आंखें किस तरह बोल रही है, मेरे हाथ किस तरह बोल रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं ये 73855 के रूल को याद रखें। बोले मेरे पीछे 73855। इफ यू वांट टू बी गुड पब्लिक स्पीकर देन ओबे दिस रूल। इस्लाम पहली चीज क्या कहता है? लो एंड हाई टोन ऑफ वॉइस। मां के सामने आहिस्ता रखो, बयान कर रहे हो ऊपर ले जाओ। और सेकंड, स्पीक इन अकॉर्डेंस विद द मेंटालिटी एंड मेंटल लेवल ऑफ द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। जो सामने वाला बंदा बैठा है इसके दिमाग के मुताबिक बात करो। थिंक लाइक ए वाइज मैन बट स्पीक लाइक ए जनरल पब्लिक। सोचो ज़हीन तरीन बन के, लेकिन जब बोलो सामने वाले की अकल के मुताबिक बोलो। डॉक्टर से जब बात करता है, मेडिकल स्टूडेंट्स, एनी मेडिकल स्टूडेंट हियर, एनी पर्सन, वी आर मेडिकल स्टूडेंट, नो वन एल्स। जब डॉक्टर से बात करता है तो किस तरह बात करता है? अपने अंदाज से बात करता है। बीमारियों के वो नाम लेता है जो हमें पता भी नहीं चलेंगे। लेकिन वही डॉक्टर जब तांदलिया वाला की या खुड़िया वाला की माई से बात करेगा, किस तरह बात करेगा? देन कल्चर देखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सवाल बहुत ज्यादा दोहराया गया, आपने भी सुना होगा, या रसूलुल्लाह बताइए सबसे अफजल अमल कौन सा है ना? और आप नोट कर लें तकरीबन हर दफा जवाब चेंज होता था। 5 नमाजें सबसे अफजल अमल है, सदका सबसे अफजल अमल है, माँ बाप की खिदमत सबसे अफजल अमल है, जिहाद सबसे अफजल अमल है। वाई चेंज? इसलिए कि नबी पाक सामने वाले को जानते हैं, उसके कल्चर, उसकी मेंटालिटी, उसके सर्कमस्टांसेस, उसके हालात के मुताबिक जवाब दे रहे हैं ना नबी पाक, उसके हालात के मुताबिक जवाब दे रहे हैं नबी पाक। तो अगले के हालात को देखो और समझो। मैं इस सवाल का जवाब मुकम्मल कर रहा हूं। याद रखना कम्युनिकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट लिसनिंग है। लिसनिंग, कीप द अदर पर्सन इजी एंड अंडरस्टैंडिंग। सुनने की आदत डालो, सुनना बड़ा जरूरी है। सुनना अगले को कंफर्ट देता है। और जब भी अगला बंदा बोल रहा हो, आप सुन रहे हो, जैसे ही वो चुप करे फौरन ना बोलना शुरू कर देना। इससे लगेगा कि आप इंतजार कर रहे थे कि ये चुप हो तो मैं बोलना शुरू करूं, आप सुन नहीं रहे थे। जब भी सामने वाला बोल रहा है आप सुन रहे हैं, जब वो बोलना खत्म कर दे थोड़ा सा पॉज ले, थोड़ा रुक जाए। अच्छा, अब बोलना शुरू करें ताकि उसको लगे पता कि इसने मेरी बात सुनी है। और कम्युनिकेशन में सबसे जरूरी चीज क्या है? लैंग्वेज। आप में से अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और आकर कहते हैं वी वांट टू learn English language because English is the lingua franca, one of the most important languages in this world. So we want to learn English language to be a good communicator, to get a good job. मैं पूछता हूं, मुझे बताइए आपने अंग्रेजी क्यों सीखनी है? वजह बताएं। वो जी बस वैसे ही सीखनी है, कभी नहीं सीख सकोगे, वैसे ही नहीं आती है। एक आकर कहता है जी जॉब नहीं लग रही, मैं अंग्रेजी सीख लूंगा, वो सारे सवाल अंग्रेजी में करते हैं, जॉब लग जाएगी, ये सीख लेगा। जी कारोबार करता हूं, जब टूटी फूटी बोलता हूं तो बड़ा प्रॉब्लम होता है, अंग्रेज समझता है ये तो कोई धोखेबाज है, अंग्रेजी सीख लूंगा तो आ जाएगी। मैंने कहा 3000 लफ्ज अंग्रेजी के सीख लो, तुम एक आम सफा अंग्रेजी का पढ़ने सुनने के काबिल हो जाओगे। ओनली 3000 वर्ड्स।
And if you will climb up to 10,000 words, then you will speak like a native English speaker. मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, याद रखना, अंग्रेजी सीखनी पड़नी है आपको। अगर आप वाकई नुमाया होना चाहते हैं, अच्छी जॉब चाहते हैं, एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर रह के, you need to learn English and you should do this as soon as possible. Second question. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फुरकान गनी है और मैं NFC का स्टूडेंट हूँ। और मेरा सवाल ये है कि आजकल नौजवानों में इस्लाम और साइंस बहुत हॉट टॉपिक है, इस बारे में कुछ रहनुमाई। इस्लाम एंड साइंस, इट्स ए हॉट टॉपिक, नो डाउट। ये बात याद रखना, बैठ जाओ बेटा, ये बात याद रखिएगा, इस्लाम और साइंस का कोई कंपैरिजन नहीं है। जैसे हवा में चलता हुआ हवाई जहाज और जमीन पे चलती हुई बस के दरमियान में कोई टक्कर नहीं हो सकती, इसी तरीके से कोई टक्कर नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है। साइंस इज ऑपरेटिंग इन अ डिफरेंट स्फीयर एंड इस्लाम इज कंप्लीटली डिफरेंट। ये मत समझिएगा कि इन दोनों के दरमियान कोई तसादुम है, कोई तसादुम नहीं है। साइंस का बेसिक ये है कि ये इवॉल्व हो रही है, ये डेवलप हो रही है, ये रुकेगी नहीं। कहा जाता था कि ये मलेरिया कैसे फैलता है बताए? दुनिया का सबसे बड़ा किलर है वो जो मलेरिया फैलाता है, वो क्या है? मच्छर, मस्कीटो। लेकिन जब ये पता चला था, कहा जाता था कि दुनिया के अंदर मलेरिया वो गंदी हवा से फैलता है, गंदी हवा से। लेकिन बाद में कहा गया नहीं, ये तो मच्छर से फैलता है। चार्ल्स डार्विन 1879 के अंदर उसने किताब लिखी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। उसके मुताबिक इंसान पहले बड़ा सा बंदर था और फिर वो बंदर छोटा होता हुआ आज यहां तक पहुंच गया। 150 साल तक इंसान ने इस बात को माना, बुक्स में लिखा हुआ था। बायोलॉजी की क्लास में यही लेक्चर दिए जाते थे जो चार्ल्स डार्विन का नजरिया था। लेकिन फिर मैंने खुद ये स्टेटमेंट पढ़ी, उन्होंने कहा कि अगर इतना बड़ा बंदर ये था, छोटा होता होता यहां तक पहुंचा, तो अब मजीद इसमें तब्दीली क्यों नहीं आ रही? सैकड़ों साल हो गए, वाई नो चेंज? So this theory, this law has been discarded and thrown in the trash. उसको कूड़े में फेंक दिया। साइंस चेंज हो रही है, लड़खड़ाती है, रात को कुछ होगी, सुबह कुछ और होगी। मैं इसको गलत नहीं कह रहा, ये साइंस का हुस्न है। साइंस को गलत मैं कैसे कह सकता हूं? आज साइंस की वजह से सारी वैक्सीनेशन हमें मिली, एंटीबायोटिक्स हमें मिली, जदीद इलाज हमें मिले। साइंस की वजह से हमें ट्रांसपोर्ट मिली, हम बड़ी बड़ी दूर आसानी से जाने वाले बन गए। साइंस की वजह से हमें सफाई के बेहतरीन तरीके मिले। साइंस की वजह से मैं चाहता हूं मेरी आवाज उछल के दुनिया भर में फैल जाए। साइंस ने मुझे ऐसे तरीके दिए कि मेरी आवाज वोकल हो गई। मैं साइंस को निगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि इस्लाम का जो ऑपरेशनल स्फीयर है वो कुछ और है। डोंट बी बिट्रेड। हम मुसलमान हैं और हमें यह यकीन है कि खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में हर मसले का हल मौजूद है। अगर साइंस इस्लाम के मुताबिक आ गई है, इसका मतलब साइंस की रिसर्च मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन अगर कोई तसादुम है, साइंस कुछ और कहती है, इस्लाम का मौकिफ कुछ और है, इसका मतलब यह है कि साइंस में मजीद तहकीक की जरूरत है। वो आएगी वहीं पर, यह कंफर्म है। याद रखना, इस्लाम ने जो कह दिया वो दी बेस्ट है। आप में से बहुत से लोग लाइव स्टॉक के हैं, मैं अब आपको साथ लेके चलूंगा, आप मेरे साथ रहिएगा। याद रखिए, मेरे पास 17 स्टडीज का निचोड़ मौजूद है कि बकरे को और ये गाय को जो हम ज़िबा करते हैं, जिसको इस्लामिक वे ऑफ स्लॉटर कहते हैं, ये सबसे ह्यूमेन है। ये रहमतुल्लिल आलमीन की तरफ से जो भी आया वो बेहतरीन और रहम वाला आया। इतनी दर्द नहीं होती उसको, बेहतरीन तरीका ये। जिस तरीके से डीप स्विफ्ट कट, बड़ा गहरा कट लगाया जाता है उसकी गर्दन पे, जुगुलर वेन कैरोटिड आर्टरीज कटती हैं, उसके ब्लड का फ्लो किस तरफ होता है, सेंसर्स ही उसके खत्म हो जाते हैं और वो बेहतरीन गोश्त के साथ आता है। ये इस्लाम है जिसने जानवरों को कम्युनिटी का है, मुआशरे का दर्जा दिया है। इस्लाम के अंदर जानवरों को लड़ाना, जानवरों को निशाना बनाना, ये सब हराम है। दिस इज नॉट अलाउड। और अब देखिए, साइंस की कौन सी बात है जो इस्लाम में ढेर नहीं करता। पहले मैं आपको ये बता दूं, कुरान बायोलॉजी की बुक नहीं है, कुरान फाइनेंस की नहीं है, कुरान लॉ की बुक नहीं है, कुरान सीएस की बुक नहीं है, कुरान इंजीनियरिंग की बुक भी नहीं है, लेकिन कुरान में ये सब कुछ मौजूद है। अपने इल्म के मुताबिक चीज अखज करेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर देखेगा अपने इल्म के मुताबिक, फुल प्रोफेसर देखेगा अपने इल्म के मुताबिक। बंदा एक ही है, मर्ज एक ही है, हर बंदा अपने इल्म के मुताबिक उसमें से चीज ले रहा है। तो कुरान मजीद तो वही है
آپ میں جتنا ٹھوس ہوگا, جتنا علم ہوگا, قرآن اتنا آپ کو نوازے گا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے فرمایا کہ سورہ فاتح کی تفسیر میں کروں 80 اونٹوں کو بھر دوں گا. آپ کریں, کوئی مفتی صاحب کریں, لیول ڈیفرنٹ ہوتے چلے جائیں گے. میں حیران ہوتا ہوں, ایمبریولوجی کی کتاب ہے جو کہ MBBS میں پڑھائی جاتی ہے, ماں کے پیٹ میں جو بچے کی پیدائش ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے ہم نے 3 پردوں میں, 3 اندھیروں میں اس زندگی کو رکھا. اور آج سائنس ثابت کرتی ہے کہ واقعی 3 اندھیرے اندر, ایمنیوٹک فلوئڈ ہے, سٹمک ہے اس کا, یوٹرس ہے, یہ 3 فلوئڈز کے اندر موجود ہے. اور دیکھو ہم کوئی بھی چیز بنائیں ہمیں روشنی چاہیے, سوئی سے لے کر بوئنگ 707 تک روشنی میں چیز بنتی ہے, لیکن رب اندھیرے میں صورتیں بناتا ہے. پہاڑ کی 7 حالتیں بیان کی گئی ہیں. پہاڑ کی, لوہے کے بارے میں فرمایا گیا لوہا ہم نے اتارا. یہ جو بلٹ ٹرین چل رہی ہے اس وقت دنیا کی تیز رفتار, یہ کنگ فشر ایک پرندہ ہے, اس کی شیپ کو دیکھ کر انسپائر کی گئی ہے. اور اسٹیلتھ فائٹر جو ہوا میں آتے ہیں, کسی ریڈار میں نہیں پکڑے جاتے, جا کے اپنا کام کر کے واپس آتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. اسٹیلتھ فائٹر کی جو ٹیکنالوجی ہے یہ ممک کی گئی ہے آؤل سے, الو سے. یوٹیوب پہ جائیں, انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا, بڑے سینسیٹیو مائک لگائے, اس مائک کے اوپر سے نا طوطے کو اڑایا, ٹھا 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 کی آواز آ رہی تھی. پھر اس کے بعد چیل کو اڑایا, اس کے اڑنے کے پر اتنے تیز تھے. میں نے خود دیکھی ہے, جب وائٹ آؤل کو, الو کو اڑایا گیا, ذرا سا بھی ارتعاش پیدا نہیں ہوا. یہ جاتا ہے, اس کے شکار کو 1 سیکنڈ پہلے بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہونے والا ہے, جا کے پکڑ کے آ جاتا ہے. And they took that technology from owl. قدرتی شاہکار ہے. سائنس نے ہمیں ہر چیز کا حل دیا اور دیتی چلی جا رہی ہے. لیکن آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میرے نزدیک قرآن و سنت یہ الٹیمیٹ ہے. These are ultimate. نبی پاک نے فرمایا اللہ has not sent down any disease without sending down its cure. اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری کہ اس کی شفا نہ اتاری ہو. نکل گئے مسلمان ہر جگہ سے شفا دیکھنے کے لیے. ابن رشد, ابن سینا, ہٹاؤ ان کو ذرا, کون بچے گا؟ کون سی فارماکولوجی بچتی ہے؟ اتنے اہم ترین لوگ تھے یہ. الخوارزمی کو ہٹاؤ, میتھمیٹکس گر جاتا پورا, ڈیسیبل پوائنٹ سے لے کے سب کچھ اس نے بنایا تھا. اسلام نے ایسی ماحول دیتا ہے جس ماحول میں سارے علم فلورش کرتے ہیں, ایسا ماحول بنا دیتا ہے. علم کی بات کرتا ہے اسلام, اسٹرونومی کی بات کرتا ہے, سورج چاند ستاروں کی موومنٹ کی بات کرتا ہے. کیوں جی, میں چاند کی موومنٹ کو نہیں پڑھوں گا تو میرا رمضان کیسے شروع ہوگا؟ میں سورج کی موومنٹ کو نہیں دیکھوں گا تو نمازیں کیسے پڑھوں گا؟ میں میتھمیٹکس نہیں پڑھتا تو وراثت اور زکات کے اصول کیسے نکالوں گا؟ صرف آخری بات کا جواب دے, میں آگے چلتا ہوں. عمر فاروق اعظم کے دور میں 27 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام کی سلطنت پھیل چکی تھی. the biggest empire ever ruled by any human. فلپ کیٹی لکھتا ہے اتنی بڑی سلطنت آج تک کسی انسان کے پاس نہیں آئی جتنی ان کے پاس تھی. تو اتنی بڑی سلطنت میں پل نہیں بننے تھے, سڑکیں نہیں بننی تھی, اکنامکس نہیں ہوگی, ٹریڈ نہیں ہوگی, میڈیکل نہیں ہوگی, ہوگی نا تو عمر فاروق کا دور ہو. یہ ساری چیزیں کس کے مطابق ہوں گی؟ اسلام کے مطابق ہی تو ہوں گی. اس کا مطلب واقعی اسلام کے اصولوں پہ ڈٹے رہو گے, 27 لاکھ مربع میل پر بھی حکومت اسلام کی لا سکتے ہو. اب میں نے آپ سے کوشچن کرنا ہے. محمد شان فرام زرعی یونیورسٹی فیصل آباد, ایم فل فرسٹ سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں, ساتھ میں بی فارمیسی کر رہا ہوں. اچھا, مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر آپ ہوٹل میں جائیں اور آپ کے سامنے ناشتے کا مینیو ہے, آپ کیا آرڈر کریں گے؟ سر میں سب سے پہلے پراٹھے اور دہی آرڈر کروں گا. پراٹھا دہی مینیو میں نہیں ہے, اب کیا کریں گے؟ دین آئی ول چینج دا مینیو اینڈ آرڈر فار آملیٹ. آملیٹ, زبردست. بیٹھ جائیں, ان کو تحفہ دے دے آملیٹ کھانے کی خوشی میں. دنیا میں سب سے زیادہ جو داشتہ استعمال کیا جاتا ہے نا وہ اورنج جوس ہے. یہ بہت بڑی مارکیٹنگ اسٹریٹجی تھی. اورنج اتنا نہیں بکتا جتنا اس کا جوس بکتا ہے. آپ دنیا کے بڑے بڑے ہوٹلز میں چلے جائیں, آپ کو اورنج جوس ضرور ملے گا. اور ایک چیز اور ہے جو بہت زیادہ پی جاتی ہے, اور وہ ہے کافی. کافی ناشتہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے, آپ نے سنا ہوگا, جو مجھے جانتے ہیں, کہ میں نے تقریباً ہر وہ کھانا جو کہ غذائیت والا ہے یا وہ سنت میں ہے تو میں نے اس کے اوپر ریسرچ کر کے اس کی ویڈیو بنائی ہے. تو یہ کافی واقعی زبردست چیز ہے. اگر واقعی بلیک کافی ہو, اس کے اندر آپ کچھ ایڈ آن نہیں کرتے.
कॉफी कब पीनी है आपने? जब आप काम स्टार्ट करने लगे, घर की मेज पे ना पिए, वहां नाश्ता करें, अच्छा नाश्ता करें, जब काम शुरू करने लगे हैं ना, ऑफिस आकर या आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी आकर, वहां पर कॉफी पी के काम शुरू करें, क्योंकि 4 घंटे कैफीन अंदर रहना है, आपको अलर्ट करके रखेगी और बहुत सी बीमारियों का इलाज है। एक और क्वेश्चन आपसे ले रहा हूं मैं, ये बड़ा आसान है, देखिए कौन देते हैं। तलाअल बद्रु अलैना, मदीने पाक में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ आवरी, ये पढ़ा गया, याद है ना सारों को? आप मुझे बताएंगे किस कबीले की बच्चियों ने पढ़ा था? ये किस कबीले की बच्चियों ने पढ़ा था? मोहम्मद तलहा तारी। तलहा तारी जी, बाय गवर्नमेंट कॉलेज। कबीला बनु नजार। बनु नजार की बच्चियों ने पढ़ा, इनको तोहफा दे दे। बनु नजार वाज द मोस्ट वेल्दी ट्राइब इन अरब, ये अरब का बहुत मशहूर और बहुत अमीर दौलत वाला कबीला था, इसकी बच्चियों ने ये पढ़ा था। थैंक यू वेरी मच जी। थर्ड क्वेश्चन आपकी तरफ से जी, बताइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई मेरा ये सवाल ये है कि दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, मैंने ये सुना है कि उनका अपने काम के पीछे वाई अपना स्ट्रॉन्ग होता है, और ये हमें कैसे पता चलेगा कि वाई अपने काम के पीछे होता क्या है और ये कैसे हमारा स्ट्रॉन्ग है या वीक है? योर वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप वो काम क्यों करना चाहते हैं। आपने रीजन अपनी जिंदगी में रखना है। मेरे पास मस्जिद में लोग आते हैं, आकर मुझे बताते हैं, मैं उनको देखता हूं, दे आर कॉन्फिडेंट एंड दे आर जीनियस, दे आर ब्यूटिफुल, दे आर रिच, पैसा भी है, खूबसूरती भी है, जहानत भी है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहा। क्यों नहीं कामयाब हो रहा? रीजन नहीं है, वजह नहीं है उसके पास, क्यों आगे बढ़ेगा। रीजन क्रिएट करें। रोजाना सुबह उठ के वो क्लर्क जा रहा है रेलवे स्टेशन में जाके रोजाना खास टाइम पे जाके वापस आता है, क्यों? रीजन स्ट्रांग है। नहीं जाएगा, बिजली का बिल कैसे पे होगा, बेटी कैसे ब्याही जाएगी, घर कैसे चलेगा। रीजन लेकर आओ, रीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट मैन स्टैंडिंग सुना आपने लफ्ज? लास्ट मैन स्टैंडिंग, दिस इज नॉट ए स्ट्रेटेजी, दिस इज द वे ऑफ लाइफ। आप आखिरी बंदे हो जो खड़े हो, यह लाजमी है, यह जरूरी है कि आप आखिरी बंदे हो जो खड़े रहो। कुछ नहीं आपके पास, लेकिन आप मैदान में जम के खड़े रहो, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ लोग गिर जाते हैं, भाग जाते हैं। जीतने किसी में तो आना है, जो खड़ा होगा जीत उसमें आ जाएगी। नाउ योर वाई इज इंपॉर्टेंट। इलॉन मस्क का वाई क्या था? उसका वाई यह था कि दुनिया के अंदर सब कुछ मैंने एक्सप्लोर कर लेना है, उसके बाद मैंने फिर बाहर जाना है। दुनिया में सब कुछ खरीद सकता है वो, अब वो बाहर जा रहा है, मरीख पे जाने की बात कर रहा है, चांद पे जाने की बात कर रहा है। नासा उसको कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, क्यों दे रही है? नासा इतनी बड़ी एजेंसी है, वो अकेला आदमी है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट दे रही है कि वो सस्ते जहाज बनाता है, एयरक्राफ्ट सस्ता बनाता है, तो सस्ता चाहिए हमें। यू मस्ट हैव ए वाई। मेरे पास एक डॉक्टर साहब आए, वो कहते हैं मैं एक छोटे से गांव से आया हूं, 2 कमरों का घर था, उसमें हम 8 बहन भाई रहते थे। जब मैं लाहौर आया, मेरी पहली ख्वाहिश ये थी घर बड़ा करना है, बाप को फारिग करके अकेला करके, और उसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैंने अच्छे ठाट बाट में रखना है। रोजाना कोशिश करता था, 4 जॉब्स करता था, गिर गया, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, आखिर में उसने अपना घर बना लिया और उसने अपने वाय को सर्व कर लिया। वाय के बगैर आप कुछ भी नहीं है। जब वाय आ जाता है ना, हाउ आसान हो जाता है। जब वाय आ जाता है तो हाउ आसान हो जाता है। सिर्फ एक मंजिल पक्की कर लो, नहीं भी रास्ता अगर पता ना, खींच के तुम्हें वो जज्बा ले जाएगा। एक बात सुन लो, अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं। दुनिया में कदर ना सिर्फ जिद्दी आदमी की है। जिद लाओ, जिद। नहीं चाहिए मुझे हुनर आपका, नहीं चाहिए खूबसूरती, टके के ज़हीन नहीं हो, जिद्दी बन जाओ। आपने नोट किया, जो जिद्दी होता है छीन भी लेता है वो। जिद्दी बन जाओ, करके दिखाऊंगा मैं, ऐसी तैसी करके दिखाऊंगा। जब ये अंदर आ जाएगा ना, सब कुछ सीधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी आपकी तरफ से जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद बेहजाद है और मैं एनएफसी यूनिवर्सिटी से हूँ जी। मेरा सवाल ये है, कभी कभी इंसान पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात और परेशानी आ जाती है, ऐसे हालात में एक इंसान क्या करे? वेरी गुड क्वेश्चन। आप पे बहुत ज्यादा परेशानियां आएंगी। अभी सब पैसा घर से आ रहा है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परेशानियां आएंगी। याद रखना, when everything is stripped away, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका जवाब सुन के जाना, अपने दिमाग के गोदाम में सवाल के जवाब को बिठा लेना। हो सकता है ये जिंदगी में आपके लिए बहुत बड़ा रहनुमा बन जाए। When everything is stripped away,
जब सब कुछ लुट जाता है, मनी, कंफर्ट एंड लव, पैसा भी चला गया, आसाइशें भी गई और मोहब्बतें भी छूट गई। अब मुझे बताइए आपके पास क्या बचा है? रॉ एंड अनफिल्टर्ड खालिस चीज आपके पास बची है जो आपकी है, क्योंकि सब कुछ तो चला गया है। और ये खाली जेब और टूटा हुआ दिल जितना बड़ा सबक देता है ना, कोई किताब भी नहीं देती। बचा क्या है आपके पास? आपका अपना आप, योर ओन सेल्फ। सोचो तो सही। इसलिए मैं कहता होता हूं कि आपने उन चीजों पर हमेशा कोशिश करते रहना है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। वो चीजें क्या हैं? आपका कैरेक्टर, आपका नॉलेज, आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड। ये वो चीजें जिन पे कभी भी गिव अप ना करना। नेवर गिव अप ऑन योर सेल्फ। आपको अपनी जात पे एतमाद नहीं है। जब आपको अपनी जात पे एतमाद हो जाएगा ना, पूरी दुनिया आप पर एतमाद करेगी, पूरी दुनिया। डजंट मैटर मच व्हाट यू हैव, व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू डू विद व्हाट यू हैव। आपके पास क्या है? मुझे से गर्ज नहीं है, मुझे सिर्फ यह बताएं जो है उसको कैसे इस्तेमाल किया आपने। कुछ चीजें मैं बोलने लगा हूं, आप सबके पास है। मुस्कुराना सबको आता है, हाथ मिलाना सबको आता है, चलना सबको आता है, खाना सबको आता है। किस तरह आप ये काम करते हैं, हर बंदा अलग अलग करता है। अगर आप चाहते हैं मेरी जिंदगी कुछ अलग से हो, तो अलग से मुस्कुराएं, अलग से हाथ मिलाएं, अलग से कलाम करें, फिर आपकी जिंदगी कुछ अलग से होगी। याद रखना, अपनी जात पे कभी भी गिव अप ना करना। मेरी मस्जिद में बंदा आया, अगर कहता जनाब के ये मेरी गोल्स हैं, ये मेरे गोल्स हैं और इन गोल्स के साथ जो है मैं आगे कैसे चल सकता हूं। मैंने उससे पूछा गोल्स हैं आपके, दोबारा बताइए। उसने बताया वो गोल्स नहीं थे। मैंने कहा ये गोल्स नहीं, ये ख्वाहिशात हैं, ये डिजायर्स हैं। डिजायर्स और गोल्स में फर्क होता है। आप में से कोई ख्वाहिश करे मैंने सुपरमैन बनना है, बैटमैन बनना है, स्पाइडरमैन बनना है, ख्वाहिश कर सकते हैं आप, ये पूरी नहीं होगी। ख्वाहिश पूरी होती भी है, नहीं भी होती। गोल ऐसा नहीं होता। गोल वो होता है जो सोच समझ के सेट किया जाता है। गोल वो होता है जिसको सेट करने के बाद उसको फॉलो किया जाता है। सुबह जल्दी उठता है बंदा, रात को बहुत लेट सोता है, खून पसीना गिराता है, बार बार परफॉर्मेंस चेक करता है, रिसोर्सेज लाके लगाता है, रेफरेंसेस लेता है, मशवरा करता है, रास्ते में रुक के फिर देखता है मैं गोल के कितने करीब आया, कितना दूर चला गया, फिर उसको रिविजिट करता है, फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है। जब आप पैदा हुए थे आपको एक इंसान दिया गया था कि इस इंसान को संभालना है। कितना संभाला आपने उस इंसान को? वो आप है। यू हैव बीन गिवन ए ह्यूमन। जब आप पैदा हुए थे आपको एक इंसान दिया गया था कि इसको संभाल के बड़ा करना है, आपने ख्याल रखना है इसका। आई लाइक माई सेल्फ, मैं अपने आप को पसंद करता हूं, मुझे अपना आप अच्छा लगता है। यह कोई जरूरी नहीं है। लोग कहते हैं जी हमें अपना आप अच्छा नहीं लगता, हमने कुछ किया नहीं है, हम अचीव जब कर लेंगे तब हमें अपना आप अच्छा लगेगा, जब हम बड़ी गाड़ी से निकलेंगे तो अपना आप अच्छा लगेगा। अच्छा लगने की बात नहीं है, लाइक और नॉट लाइक, बट यू शुड लव योर सेल्फ। अपने आप से मोहब्बत जरूर करो, टका के मोहब्बत करो अपने आप से, रोजाना मोहब्बत करो अपने आप से, ताकि तुम डेवलप होते चले जाओ। याद रखना, इट डजंट मैटर व्हाट यू हैव, व्हाट यू डू विद व्हाट यू हैव। हम असातिज़ा को और वालिदैन को ये नसीहत करते हैं कि इस तरह से बच्चों की परवरिश करें कि इनके अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पैदा हो। आपको सबको पता है सब एटॉमिक पार्टिकल जो इतना स्ट्रांग होता है कि उससे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पैदा होता है और एटम बम फट जाता है। वो ऐसा पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नजर आता है या शायद उससे भी नहीं आता। उसमें इतनी ताकत हो सकती है, तो आपके अंदर कितनी ताकत होगी? योर सोल इज द रेजर्वायर ऑफ इमेंस एनर्जी। आपकी रूह बहुत बड़ी एनर्जी का एक गोदाम है, बहुत बड़ी एनर्जी का। बस सिर्फ एकेडमिक्स और दौलत को ना देखना, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को सारी जिंदगी देखना। यह नौजवानों को एक नसीहत है। आप समझते हैं कि दौलतमंद सबसे ज्यादा अहम होता है? नहीं, हाथ का अमीर नहीं, दिल का अमीर बनने की कोशिश करना। दिल का अमीर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू बिकम रिच बाय हार्ट। इस सवाल का जवाब आखिर में यह बात कह के बंद करता हूं, अपने आप को कभी भी एक्सक्यूज मेकर ना बनाना। बड़ा अच्छा कोट मेरे सामने लिखा हुआ है
If you can't beat the fear, just do it scared. If you can't beat the fear, just do it scared. अगर किसी चीज के बारे में तुम डर खत्म नहीं कर रहे तो डरते डरते करो, लेकिन करो जरूर. मुझसे किसी ने कहा जनाब आप लेक्चर्स देते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, ब्यूरोक्रेट भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी होते हैं, बिजनेसमैन भी होते हैं, कभी आप नर्वस नहीं हुए? मैंने कहा नर्वस होता हूं, लेकिन नर्वस होते होते बयान करता हूं. जस्ट डू इट नर्वस, जस्ट डू इट ब्रोक. मैं टूटा हुआ हूं, क्या करूं? टूटे रहते रहते काम करो. जस्ट डू इट अलोन, मैं अकेला हूं, क्या करूं? अकेले रहते रहते काम करो. जस्ट डू इट डिप्रेशन, मुझे डिप्रेशन आया हुआ है, आने दो उसको, काम ना छोड़ो, काम करना है. आइडियल एनवायरनमेंट और आइडियल इमोशंस ये कभी नहीं रहेंगे कि ये वो खास एनवायरनमेंट आएगी तो मैं काम करूंगा, वो इमोशन मेरे ऊपर आएगा तो मैं काम करूंगा. नो, डिसिप्लिन कहते हैं इसको कि दिल चाहे ना चाहे वो काम मैंने करना है. When you will do this, you will become a superman. You will become a superman. अच्छा, जब आपकी तरफ से क्वेश्चन होगा, हम अपने यूथ टॉक्स को खत्म की तरफ लेके जा रहे हैं जनाब, खत्म की तरफ लेके जा रहे हैं जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मेरा नाम खिजर हयात है और मैं जिस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ. जी खिजर भाई, मेरा सवाल है कि ख़वातीन का मर्द की ज़िंदगी में क्या रोल है और इस रिश्ते को कैसे निभाया जा सकता है? मर्द की जिंदगी में औरत का रोल क्या है? ये देखो, ये क्या है, ये क्या है? तो बोलो, बोलते जाओ. तस्बीह है, तस्बीह है. ये जो इसका सर है ना ऊपर वाला, ये सर है ना, ये मर्द है. और ये जो इसके दाने ना, बीट जिसे कहते हैं, ये बच्चे हैं. औरत कहां गई? वो ये रस्सी है. मां कहां गई? वो मां ये रस्सी है जिसने सबको जोड़ा हुआ है. इतना बड़ा रोल. आती ना मां याद? वो ये रस्सी है, कैसे इग्नोर कर सकते हो? मुझसे किसी ने पूछा, आपकी उम्र का ही था, औरतों को कैसे मर्द पसंद है, उनमें कौन सी खूबियां होनी चाहिए? व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन विमेन लाइक? पूरी दुनिया के अंदर 3 क्वालिटीज मर्द में हो, औरतें उन्हें पसंद करती है. नंबर 1, याद रखिए, नंबर 1 क्वालिटी मर्द में कौन सी होनी चाहिए? काइंडनेस. मर्द काइंड हो औरत के साथ, उसके घर वालों के साथ, उसके एटीट्यूड से लगे कि ये काइंड है, क्योंकि औरत वुल्नरेबल है, फिजिकली वीक बनाई गई है, इमोशनली वीक है. वो अपने से बड़ा कोई चाह रही होती है. दुनिया के सारे सीईओज कहते हैं कि जब जॉब में बैठ के औरत कोई बड़ी बात भी करती ना, सॉफ्ट होके कर रही होती है, हालांकि उसके लिए कॉन्फिडेंट चाहिए. और मर्द कोई आम सी बात भी कर रहा होता है तो मर्द बन के कर रहा होता है. औरत मर्द में पहली चीज देखती है काइंडनेस, ये कितना मेहरबान है, कितना मेरे साथ अच्छा सलूक करेगा. नंबर 2, औरत ये देखती है कि ये कितना इंटेलिजेंट है. इंटेलिजेंट नहीं है तो मेरी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेगा? क्योंकि औरत तो बजाते खुद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. उसे इस बात का अंदाजा है कि मैं तो प्रॉब्लम हूं, मैं तो एकदम से पागल हो जाती हूं, एकदम से मेरा अजीब सा काम हो जाता है. ये इंटेलिजेंट होगा तो मुझे सॉल्व कर सकेगा ना मेरी मिस्ट्रीज को. और नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैन मस्ट सिग्नल दैट आई कैन अफोर्ड यू इन फ्यूचर. मर्द औरत को यह सिग्नल दे दे कि मैं तुम्हारी फाइनेंशियल जरूरियात का ख्याल रख सकता हूं, मेरे में इतनी पावर, इतना कंट्रोल है. और मर्द को क्या चाहिए औरत से? याद रख लेना, सबसे बड़ी चीज रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट. मर्द के डीएनए के अंदर यह बात मौजूद है कि औरत मेरी इज्जत करे, मेरे डिसीजंस को माने, मेरी लीडरशिप को माने, मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूं. सारा दिन बाहर जाके दिहाड़ी लगा के बॉस की बातें सुन के नौकरी के अड्डे पे खड़ा होके जलील होके इतनी ढेर सारी जंगें लड़के जब वो घर आता है, उसकी बिल्कुल ख्वाहिश होती है कि घर में भी जंग लड़ी जाए. वो घर में रिचार्ज होने आया अगली जंग के लिए. सिखा दो तुम्हारे करीब जो भी है कि मर्द की जंगों में उसको नई जंग ना दो, उसकी जंगों को सॉल्व करो. आजकल औरतों में एक बहुत बड़ी बात आ रही है, सेल्फ डिपेंडेंट है ना, हम सब कुछ खुद ही कर सकते हैं. आ रही ना, ट्रेनिंग भी ऐसी हो रही है, एजुकेशन भी दी जा रही है, सेल्फ डिपेंडेंट. एक छत के नीचे 2 सेल्फ डिपेंडेंट लोग कभी नहीं रह सकते. एक लड़ाई की मार, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, उन दोनों की एक दूसरे की जरूरत ही नहीं है. जब मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूं, ये भी सेल्फ डिपेंडेंट है, लड़ाई हुई मैं तो अपना काम करूंगा, वो अपना काम करेगी. कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट ना लेकर आना, इंटरडिपेंडेंट.
میں یہ کام اپنی خاتون کے بغیر نہیں کر سکتا, اور خاتون یہ سوچے میں یہ اپنے کام اپنے مرد کے بغیر نہیں کر سکتا, اب وہ رشتہ لمبا ہوگا, دیر تک چلے گا. السلام علیکم سر. My name is Mohammad Atiq and I am student of English literature from GCUF. My question is that which are the most dangerous habits in youth and how can avoid them? دیکھیں سب سے پہلی ہیبٹ جو نوجوانوں میں بہت گندی ہے نا, وہ ہے برین راٹنگ. برین راٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ دماغ میں آپ کے زنگ لگ رہا ہے. یہ کوئی میڈیکل ٹرمینالوجی نہیں ہے, لیکن ہر وہ کام جو یوز لیس آپ کرتے ہیں نا, جس کے اندر کوئی نالج نہیں ہے اور جس کے اندر آپ کا دماغ استعمال نہیں ہو رہا ہوتا, وہ کام بڑا خطرناک ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, بہت زیادہ خطرناک کام ہے. آج موبائل فون نے اس چیز کو بہت زیادہ پھیلا دیا ہے. اگر آپ ہر جگہ موبائل لے کر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں, ہر کمرے میں ہر جگہ, تو پرابلم ہے. اگر آپ بار بار سوچتے کہ میسج تو نہیں آیا, کال تو نہیں آئی, اور نہیں آئی بھی کال, اور جب میسج آ جائے فوراً جواب دوں ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اور جیسے ہی بیٹری ڈیڈ ہونے لگتی ہے آپ کا ٹینشن بڑھ جاتی ہے, تو پرابلم ہے. اگر آپ صبح اٹھتے ہیں اور اپنے ساتھ والے بندے کو سلام کرنے کے بجائے پہلے موبائل اٹھاتے ہیں, پرابلم ہے. پرابلم ہے. مسئلہ پتہ کیا ہے, پہلے امبانی کو ہم جانتے تھے صرف کہ امبانی انڈیا کا سب سے امیر آدمی ہے بس. اب امبانی کے گھر کے اندر گھس گئے ہم. کیا ہوا شادی میں, زکربرگ آیا, بل گیٹس آیا, یہ دیکھ لیا ہم نے. کمپیرزن پیدا ہو گیا ہے. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا, میری شادی پتہ نہیں کیسی ہوگی, اس کی دیکھو. دس تھنگ از بیڈ. اور پھر یہ دماغ ایسا بنا ہی نہیں ہے. ریل دیکھی پہلی کتا ناچ رہا ہے, دوسری ریل دیکھی بمباری ہو رہی ہے, تیسری ریل دیکھی کوئی جوڈو کراٹے کھیل رہا ہے, چوتھی ریل دیکھی کھانا پکا رہی ہے. اتنی جلدی ڈیٹا پروسیس ڈفرنٹ کائنڈ کا دماغ ایسا بنا ہی نہیں ہے. یور کوگنیٹو ایبلٹی ڈزنٹ کوپ ود دس ریپڈ چینج. سن لو جملہ لے جاؤ, جو دن میں 6 سے 7 گھنٹے فضول موبائل پکڑتا ہے نا, بھیک مانگے گا, اور جو 8 سے 10 گھنٹے پکڑتا ہے پاگل ہو جائے گا, نفسیاتی مریض بن جائے گا. یہ ایک ایسا مرض بن چکا ہے جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. They are playing with your mind. Go to China and see the reels on TikTok. In China, the TikTok timeline is filled with Chinese youth is preparing new robots. Chinese youth are aiming for moon. Chinese youth are doing this creative thing. TikTok کی نیوز فیڈ چائنا میں یہ ہے, اور ادھر آ کے پاکستان میں دیکھو. They are playing with your mind. Your mind is not so much big. موبائل پکڑانا ذرا مجھے, موبائل دینا. ابھی میں نے آپ سے بات کی نا, اب میں یوں بات کر رہا ہوں. دیکھیں جی, ہمیں موٹیویشن چاہیے, اچھے انداز سے ہونی چاہیے, بہت زبردست موٹیویشن کی خوبی ہے, پلانز ہمیں بنانے چاہیے. اور ایمان سے بتانا, آپ کا دل یہ کہہ رہا تھا نا کہ ہم اس کے نزدیک اتنے امپورٹنٹ آدمی نہیں ہیں, کہہ رہا تھا نا. میں اگر اس کو یہاں پہ بھی رکھ دوں ایسے کر کے, اب بول رہا ہوں, ابھی بھی سگنل غلط جا رہا ہے, سگنل غلط جا رہا ہے کہ سامنے کیوں بڑا ہوا ہے. اس مشین کے اندر یہ نحوست ہے. آپ نے نوٹ کیا, آپ کا دوست ساتھ چل رہا ہوتا ہے, چل رہے دونوں, چل رہے, آپ اچانک موبائل نکال لیتے ہیں, تھوڑی دیر بعد وہ بھی نکال لیتا ہے نا. کیوں؟ اس کو پتا چل گیا میں اس کے نزدیک اہمیت ہی نہیں میری کوئی. یونیورسٹی کے اندر میٹنگ ہو رہی تھی, ہر ادارے سے لوگ آئے ہوئے تھے, بیچ میں اتنا سا گیپ آیا, آپ نے فوراً موبائل نکال لیا. او بابا, یہی تو وقت تھا جب آپ کنیکشنز بناتے, دنیا کو دیکھتے, کچھ نظریں اٹھا کے سمجھتے. غلط نہیں کہہ رہا میں, کیونکہ اس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے, مجھے اس بات کا پتا ہے. ڈیتھ بیٹ ریگریٹس کے اوپر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نرس تھی, پیلیاٹیو کیئر اور ہاسپائس میں نرس تھی. ہوتا یہ کہ جب انسان مرنے والا ہوتا ہے, اس کو بتا دیتا ڈاکٹر کہ مر جاؤ گے 2 مہینے میں, 2 ہفتے میں مر جاؤ گے, تمہاری کنڈیشن ایسی ہے. اس وقت یہ نرسز ہوتی ہیں جو اسپیشلی اس کو مطلب میٹیگیٹ سفرنگ اور انکریز دا کوالٹی آف لائف, کہ اس کی درد دور کریں گے, سب کچھ کریں گے. اس نے 12,000 موتیں دیکھی تھی. وہ کہتی ہے, وہ لکھتی ہے کہ میں نے موتوں کے اندر سب سے پہلی بات یہ دیکھی کہ مرتے وقت نا بندے کا ویژن کلیئر ہو جاتا ہے. وہ ڈرامے نہیں کرتا, منافقت نہیں کرتا. کیوں؟ اس کو موت نظر آ رہی ہوتی ہے, کلیئر ہو جاتا اس کو میں نے کیا کرنا ہے. کسی نے ڈگری نہیں مانگی, کسی نے پیسہ نہیں مانگا,
किसी ने अपनी ऑडी नहीं मांगी, सबने एक ही बात की, मुझे मेरे रिलेशनशिप्स दिखाओ, रिलेशनशिप्स दिखाओ, प्यार दिखाओ मेरा, मुझे, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरी मां। और मुझे बताया सबसे स्ट्रांग रिलेशनशिप क्या है? मां बाप का नहीं, बच्चे का नहीं, दोस्त का नहीं, सबसे स्ट्रांग रिलेशनशिप एक मुसलमान का अपने नबी के साथ है। वाज़ेह तौर पे फरमा दिया गया, तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक मैं तुम्हारे बाप, मां, जान, माल, औलाद सबसे ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं। तो क्यों ना इस रिलेशन को मजबूत करना शुरू करें हम। हर एक का कोई मकसद है। आज से मकसद ले जाओ मेरे यूथ टॉक्स का। आपका मकसद यही है कि आपने रोजाना अपना रिलेशन अपने नबी से मजबूत करना है। क्रिकेटर्स के साथ रिलेशन मजबूत करने वाले, गुलकारों और अदाकारों से रिलेशन मजबूत करने वाले छोड़ दो, उन्हें पता भी नहीं तुम कौन हो, वो कभी जान भी नहीं सकेंगे। और ये वो हैं जो कयामत के दिन तुम्हें हर मरहले से ग्रीन कार्ड दिखा के निकालेंगे। मेरे उम्मतियों, आओ साइड से आ जाओ, ये पुलिस रात से गुजर जाओ, गुजरने दो भाई इसको, जाओ, प्यास लगी है, आओ आबे कौसर पिलाता। ट्राई टू बी लॉयल यार, ट्राई टू बी लॉयल, ट्राई टू बी ओबीडियंट, try to follow him. He is the only one savior for us. You have been given this blessing that you are ummati. Do you know that you are ummati? What are the requirements to be a good ummati? To follow him, to follow his sunnah, to follow his pathway. What he has said is greatest, is complete for the entire humanity. He is the final prophet in the whole list of hierarchy. He is complete. He has given us a book. That book is complete, containing every solution, cultural, social, educational, military, everything is in this book and in this personality. From today, make an intention that this is the purpose of my life, that I will follow the holy prophet in letter and spirit. हर चीज का एक मकसद होता है। क्या मकसद है आपका, मुझे बताइए। कभी सोचा ये बात? वेल मछली को पढ़ा मैंने, जब वो मरने लगती है, 1,30,000 किलो की मछली है, 180 किलो का दिल है उसका, जबान उसकी हाथी जितनी है, उसकी वेन्स इतनी बड़ी है, खून की नाली है कि उसमें तैरा जा सकता है, इंसान तैर सकता है। जब मरती है ना, साइंसदान कहते हैं कि वो अपने नेस्ट से, अपने वो जगह से दूर चली जाती है तैर के, और ऊपर एक आखिरी डाइव लगाती है जिसे कहते हैं वेल फॉल, और वो नीचे जाके कहीं खाई में मर जाती है। 100 फीट लंबा, वर्ल्ड लार्जेस्ट एनिमल एवर, सबसे बड़ा जानदार यही है अभी तक जितने भी आए दुनिया में। जब वो मरती है ना, सबसे पहले शार्क्स और ईल्स आते हैं। यू नो ईल, ये एक मछली है जो 600 वोल्ट तक बिजली पैदा करती है। जब इसका प्रे आता है ना, जब थ्रेट होता है, ये बिजली निकालती है अपने जिस्म से। ये दोनों आती हैं, उसके गोश्त को खाती हैं, फिर ये चले जाते हैं, फिर स्मॉल वॉर्म्स आते हैं, छोटे कीड़े, वो इसके गोश्त के ऊपर आ जाते हैं, वो खाते हैं। फिर उसके बाद ज़ॉम्बी बैक्टीरिया आते हैं, ज़ॉम्बी बैक्टीरिया, ये एसिड गिराते हैं उसकी हड्डियों पे, प्रोटीन्स और फैट्स में वो तब्दील हो जाती हैं। उसके बाद सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज आते हैं, ये किसी दूसरे जानदार के साथ मिलकर उसकी हड्डियों के स्ट्रक्चर को गिरा देते हैं। अब वो हड्डियां मेल्ट डाउन हो गई और वो समुद्र के अंदर खाद का काम करती हैं। इस पूरे प्रोसेस को 100 साल लगते हैं। मर गई, कितनों को खिला गई? 45 स्पीशीज उसके ऊपर खाती हैं और 12,500 जानदार उस पर पलते हैं। एवरी डिजाइन ऑफ दिस नेचर इज सो परफेक्ट। अल्लाह का निजाम कितना प्यारा है। सूरज रोशनी पैदा करता है, लेकिन वो रोशनी उसको कोई फायदा नहीं देती। गाय दूध देती है, वो दूध खुद नहीं पीती। वट इज योर पर्पज इन दिस लाइफ? ट्राई टू एक्सप्लोर दैट। कोई मकसद नहीं है ये गाड़ी ले लूं, शादी कर लूं और बच्चे हो जाएं और अच्छी डिग्री लेके चला जाऊं। ये सारे ही कर रहे हैं, कुछ नया करना। कुछ लोग ना क्रेजी से होते हैं, उल्टी बात कर रहे होते हैं, हमेशा नया सोच रहे होते हैं, हर बात को चैलेंज कर रहे होते हैं। उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको छेड़ा जाता है, लेकिन उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लोग चेंज लाते हैं। These people bring change. So be a game changer. ये डॉक्टर बैठा है, ये FMU से आया है। मैं इसको कहूंगा कि दुनिया में 6 किस्म के एंटीबायोटिक्स इजाद हुई हैं, डॉक्टर तो ये बन जाएगा अगर इसकी नब्ज चलती रही तो।
जाओ ऐसा कुछ करके दिखाओ, 7वीं एंटीबायोटिक आप इजाद करो। आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एनएफसी से आए हैं, मैं ऐसे इंजीनियर को जानता हूं, 22 साल हो गए यूईटी लाहौर को वेलकम और फेयरवेल में दे रहा हूं अपने घर में, यानी मेरा बनाया हुआ इंजीनियर कहां तक पहुंच चुका होगा ना यूईटी का। आप एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हो ना, कुछ नया करो कि पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 पे आ जाए। आज से 12 साल पहले यूटी लाहौर से उसने इंजीनियरिंग की थी, इतने रिसर्च पेपर हैं उसके, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी मुंह मांगी कीमत पर उठाना चाह रही है उसको, मुंह मांगी कीमत पर नहीं जा रहा और नखरे करता है, क्योंकि नखरा करना बनता है। आप कहते हो जॉब नहीं है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके बारे में सेठ बंद कमरों में लड़ रहे होते हैं, और मुझे दे इसको, मैं 1 मिलियन दूंगा उसको, मैं 2 मिलियन दूंगा उसको। ऐसे बनो टक्के वाले। मुझसे किसी ने पूछा था कि सबसे मौज, बड़ी मौज क्या है, मैंने कहा बड़ी मौज पता क्या है, मैं और ये बैठ के बात कर रहे हैं, ये कहता है सुभान भाई वो काम करवाना है, मैं कहता हूं यार वो जैद को बुला के करवाओ, कहता नहीं यार वो बड़े पैसे लेता है। नहीं यार करता तो वही है ना काम, मजेदार करता, उसको बुलाओ। नहीं बड़े पैसे देता है, फोन करें, हाँ जैद, हाँ जी क्या बात है, यार ये काम करवाना है, अभी टाइम नहीं है, परसों आऊंगा। अच्छा पैसे कितने लोगे, 2 लाख, इतने ज्यादा, ये भाई काम करवाना है कि नहीं करवाना आपने। ये मौज की जिंदगी है कि नहीं। ऐसे बनना, ऐसे बनना। मिन्नतें कर रहे हो, ये सीवी देख रहे, ये लिखा मैंने, ये लिखा है सर, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तरसे ये मेरे पास आएगा, इस लड़के को जाने नहीं दूंगा मैं। मुझे किसी ने पूछा इंटरव्यू देने जा रहा हूं, तो इंटरव्यू में क्या चीज सिखाएं जरा मुझे इंटरव्यू स्किल्स में। मैंने कहा बेटा कुछ नहीं, बस ये दुआ करना तू जब जा रहा है ना, वो जो तेरा इंटरव्यू ले रहा है उसे तुझसे प्यार हो जाए बस। कहता क्या मतलब, मैंने कहा हाँ तो और क्या, वो प्यार हो जाए उसे, तुझे रख लेगा। आपको पता है प्यार हो जाए ना, बंदा फारग भी हो ना, उसको सिखा भी खुद लेगा, कि यार ये बंदा दे दे मुझे, मैं खुद ही सिखा लूंगा, बस बंदा मुझे अच्छा लग गया। ये वो सीवी तो सबका एक जैसा है, वही एमएस किया हुआ, वही स्किल्स है, वही सारा कुछ है, बस एक दफा नजर में आ जाए बड़े के, यकीन करो वो नहीं छोड़ता। फिर लॉयल्टी, बॉस इज राइट, ये एटीट्यूड कभी ना छोड़ना। एक छत के नीचे काम कर रहे हो ना, बॉस राइट, बॉस राइट, बॉस के खिलाफ ना कुछ बोलना, कभी ना बोलना। निकाले जाओगे, जॉब है नहीं बाहर, गैस खत्म है, बिजली कोयला सब खत्म है, अगर यहां रहना है बॉस इज राइट। कभी ऑफिस में बैठ के लूज टॉकिंग ना करना। गाय आई, गाय आकर कहती है ओए हाय आज मैं बहुत थक गई हूं, मैं गिरने लगी हूं बस। कुत्ते ने सुना, कुत्ता क्या बतख के पास, कहता गाय कह रही है कि मालिक ना बहुत काम करवाया मालिक ने इससे, आज वो थक गई है, गिर गई है। कुत्ता गया बतख के पास, बतख कहता है वो गाय कह रही है कि मालिक बड़ा जालिम है, बहुत काम करवाता है। बत्तख गई मुर्गी के पास, जाकर कहती है पता चला गाय ने क्या कहा है, कह रही है जालिम है बहुत, और कल गाय अपने साथ 100 गायों को लेकर आके ना हमला कर देगी। मुर्गी गई मालिक के पास, जाकर कहती गाय तो भागी हो गई है, वो तो हमला करने लगी है। गाय पकड़ी, गाय पे छुरी फेरी, गाय गई। क्यों? लूज टॉकिंग की थी। लूज टॉकिंग ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कर रहा है, सीईओ के खिलाफ कर रहा है, बचोगे कैसे? शट अप योर माउथ, डोंट स्पीक दीज लूज वर्ड्स। दावत आपने कोई क्वेश्चन ऐसा जो प्लांटेड ना हो, जो करना चाहे, सिर्फ एक, और खड़ा कर दो उसको जल्दी से, बोल दो